اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ایڈوکیٹر ریحان احمد شیروانی، آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ وائس۔ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں دوسرے پر ہیں، اللہم صلی علی محمد نبی تسلیما۔ دوستو، آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک خاتون جو ہے اپنے آپ کو یعنی کہ آرمی آفیسر کی یعنی بیوی کہلاتی ہیں، پولیس والے سے بدتمیزی کری، مانسیرا جو ہے KPP میں ہے کہ وہاں پہ اس جگہ پر، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، سب سے پہلے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور کس طرح ہماری پاکستانی فوج کو اس بدتمیز خاتون کو لے کر پوری فوج کو نہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ظاہر کس کو خوشی ہو رہی ہے؟ خاص طور پہ انڈیا کو بہت خوشی ہو رہی ہے، جو ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں ان کو خوشی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر جو دشمن ہیں جو ویڈیو بنا کے وائرل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دل کو تسلی ہو رہی ہے۔ تو وہ کہ ایک کہاوت میں سنیے، ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ، یہ دنیا میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ طاقتور جو ہے غریب کو یعنی کہ دباتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قانون اس کے لیے قانون الگ ہے اور غریب کے لیے قانون الگ ہے۔ جیسے پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، خاص طور پہ ادھر ان علاقوں میں جو ہے ان کنٹری میں جو ہے انصاف نہیں ہے۔ یہاں پہ جو طاقتور ہے وہ اس کا قانون الگ ہے، وہ چھوٹ جاتا ہے، اور جو غریب ہے وہ یعنی کہ پستا رہتا ہے عدالتوں میں، جیلوں میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ کرنل کی بیوی بتاتی ہیں، خیر کرنل کی بیوی تو نہیں لگ رہی تھی مجھے، تو یہ کوئی چپراسی کی بیوی لگ رہی تھی، چپراسی کی بیوی بھی اس سے اچھی ہوتی ہے۔ 64 FF کے کرنل صاحب ان کے ساتھ۔ ہاں، میں تو اتنا ہمیں کوئی بھی، یہ ساری گاڑیاں کھڑی ہیں، یہی بتایا کہ گاڑی نہیں چھوڑی۔ جی آرمی آفیسر کی بیوی صحیح، معمولی بات نہیں، صبح اس کو یہاں مجھے کھڑے کرنے پہ نا دیکھنا اس کے ساتھ کرتے گیا۔ ابھی میں بتایا ان کے نائب صوبیدار، ان کو بتایا نا، نائب صوبیدار کی ماں کی آنکھ، میں کرنل کی بیوی، نائب صوبیدار کو تم کہتے ہو، میں اٹھ کر واپس اس کو اٹھا دوں گی، پہلے میں نے اٹھایا تھا، ہٹاؤ اس کو۔ نائب صوبیدار اس امداد کتے کے بچے کے، ابھی میں جاتی ہوں اس کی وردی ادھر اتارنے۔ ہاتھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اس طرح عجیب آپ دیکھیں کتنی 10 گاڑیاں کھڑی ہیں نا، انسلٹ ہوتی ہے وردی میں۔ آپ میرا ٹائم ویسٹ نہیں کرو، میں نے جانا ہے بہت آگے جانا ہے۔ ان کے اخلاق بھی بہت اچھے ہوتے ہیں چپراسی کے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی کہ اب کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بد اخلاق خاتون لگ رہی تھی، بدتمیز، ٹھیک ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور آرمی جو ہے اس کو یعنی کہ زیادہ ایکشن لے بھی لیا ہوگا، اور جب لے لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے یعنی کہ TV پر سب کو پتہ چل جائے کس طرح ایکشن لیا، ٹھیک ہے۔ جب زیادہ انکوائری ہوتی ہے ایک دم سے تو نہیں لیں گے نا، وہ یعنی کہ یہ کرنل کی بیوی ہے بھی یا نہیں ہے، ٹھیک۔ جب یہ آپ دیکھیں گے یعنی کہ کس طرح پولیس والوں سے بدتمیزی کری ہے۔ اس میں ایک سپاہی شمس اور SI جو ہے چنگ زئی نام ہے ان کا، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ویڈیو بنائی۔ یہ ویڈیو صحیح بنائی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ خاتون بدتمیزی کر رہی ہے، اپنا وہ آرمی آفیسر کی کوئی بیوی کھلا رہی ہیں، آرمی آفیسر سے بیوی ہیں تو یعنی کہ سر پر ان کو بٹھا لیں، ٹھیک ہے، کہ آپ بدتمیزی کریں اور جو بھی کریں، قانون پاکستان میں سب کے لیے برابر ہے، ٹھیک۔ بہرحال یہ ہے کہ میں ایڈوکیٹ ہوں، تو میری بیوی جا کر یعنی کہ ہر کسی سے بدتمیزی، میں ایڈوکیٹ کی بیوی ہوں، میرے بیٹے میں بچے جا کر بھائی جو ہے میں یعنی کہ ایڈوکیٹ کے ہم فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ قانون کو ایڈوکیٹ کو بھی فالو کرنا ہے، ڈاکٹر کو بھی فالو کرنا ہے، پولیس والوں کو بھی فالو کرنا ہے، فوجیوں کو بھی فالو کرنا ہے، رینجرز کو بھی فالو کرنا ہے، جتنے بھی ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں سب کو قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پروٹوکول تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پروٹوکول اب ظاہر ہے آپ پروٹوکول لیں، پھر ٹھیک ہے، آپ کوئی ایسا یعنی کارڈ بنتا ہے اور یعنی کہ ہوتا ہے، اور پھر وائرلیس کے ذریعے بتایا جاتا ہے بھائی یہ گاڑی ہے، اس کو آپ جانے دیں گے، وہ الگ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہائی اتھارٹی جو ہے اس کو پرمیشن دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پولیس والوں کو نہیں لکھا کہ آپ کی شکل پہ آپ کس کی بیوی ہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے، آپ کو چھوڑ دیتے، پھر دوسرے جو پاکستانی ہیں وہ بولتے ہیں کہ ان کے لیے الگ قانون ہے، ہمارے لیے الگ قانون ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال بڑی یعنی کہ بدتمیزی کی اس خاتون نے، ٹھیک ہے، انتہائی یعنی کہ بد اخلاقی کی، پولیس والوں سے گالیاں دی انہوں نے، ان کو شرم نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ یہ خاتون ہوتے ہوئے اس طرح کی انہوں نے حرکت کی ہے، اور جس طرح ویڈیو دیکھیں کتنے وائرل رہتے ہیں کہ کس طرح یہ کر لیا، ہمارے پوری دنیا میں جو ہے ہماری یعنی کہ بے عزتی کرائی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے، پھر اس کے بعد ان کے فاروق خان جو ہیں شوہر ہیں، وہ بھی یعنی کہ جس طرح نام آ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں، فاروق خان ان کے شوہر ہیں بھی یا نہیں ہے یہ تو پھر انکوائری میں پتہ چلے گا۔ یہ بھی دیکھیں کس طرح بدتمیزی کریں ٹریفک پولیس والے سے۔
लोग हो तुम लोग। तुमसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है। तुम कर्नल हो तो अपनी इज्जत खुद कराओ। मसला क्या है आपको भाई? आपको मुलाजिम में पार्टी मसला क्या है आपको? पे करो आए आपका कौन है एसपी, ये बताओ। तो आप मुझे घर से निकाल देंगे। मैं तुम्हारी वर्दी उतारूंगा। ठीक है, वो चालान करा, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। आप फौज के अफसर हो, ठीक है, होंगे अपनी जगह, ठीक है, लेकिन आप प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़ होती है, वायलेंस के जरिए बताया जाता है भाई ये ऑफिसर है, ये गाड़ी नंबर है, इसको आप जो है रोकेंगे नहीं। तो उससे क्या होता है, एक सिक्योरिटी भी हो जाती है, हाँ भाई ये हाई अथॉरिटी से आया है, इस गाड़ी को रोका नहीं जाएगा, फिर उसको रोकते नहीं है। ठीक है, बारह ये वो यानी कि अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप गालियाँ बक रहे हैं, गंदी गंदी गाली पे करें, तो आपने ओहदे की भी तौहीन कर रहे हैं, इदारे की भी तौहीन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो है यानी कि हमारी तसल्ली हो रही है इस वीडियो से। दिखाने का मकसद ये है कि सिर्फ एक जने के कहने से जो है पूरी आर्मी नहीं हो सकती। एक वकील खराब हो जाए तो पूरा वकील, सारे वकील वकला जो खराब नहीं होंगे। एक डॉक्टर बदतमीज होगा तो पूरा डॉक्टर बदतमीज नहीं होंगे। सियासतदान करप्शन करते हैं, उनकी बीवियाँ यानी गलत करती हैं, तो उसका मतलब नहीं पूरे सियासतदान जो खराब हो जाएंगे। यानी कि हमारी सोशल सोसाइटी में कुछ लोग जो है बदतमीजी करते हैं, इसका मतलब नहीं पूरी पाकिस्तानी कौम जो है बदतमीज हो जाएगी, नहीं। ठीक है, वो उनका अपना फेल है, उनके इखलाक है, उनके माँ बाप ने उनको किस तरह तरबियत दी है, उनका फेल है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये इस तरह ये हुई, और हमारे पाकिस्तान में हमारा बाजार इंडिया दुश्मन है, वो उसको यानी कि बड़ा अच्छा बता रहा है, और लेकिन हमारे पाकिस्तानी भी इस तरह बता रहे हैं कि जैसे कि वो इंडिया के कहने पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, किसी ज़ाहिर वो एक बदतमीजी औरत है, ठीक, उसके चक्कर में थोड़ी आप हम अपनी यानी कि पूरी पाकिस्तानी फौज को यानी कि वो करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा इससे आपको एक बताता हूँ। इसमें यानी कि एक सियासत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, 2012 में यह इलेक्शन हुए थे मेरे ख्याल से। हमीदा शाह नाम है इनका, ठीक है, हमीदा शाह नाम है ये। फिर ये इन्होंने देखो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को किस तरह थप्पड़ मारा, ये देखें वीडियो आप। ये अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, और इस हवाले से चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के इंतहाई सख्त रिमार्क्स इस हवाले से उन्होंने दिए थे। उनका ये कहना था कि रेंजर्स की जानिब से जो कार्रवाई की गई थी, तशद्दुद की, बहीमाना तशद्दुद किया गया था नौजवान पर, उससे भी ज़्यादा संगीन ये हरकत थी वहीदा शाह की जानिब से। एक अवामी नुमाइंदा जो इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर तशद्दुद किया था वहीदा शाह ने, और अब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया है कि 2 साल के लिए उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। ठीक है, किस तरह थप्पड़ मारा, ये क्या अवाम की नुमाइंदगी है। मेरे ख्याल से ये कायम अली की बेटी है शायद, आई थिंक, मेरे ख्याल से, मेरा कंफर्म नहीं है, लेकिन आप वीडियो में देखें इनको किस तरह, यानी कि आप ये बताना चाह रहा हूँ कि ताकतवर जो है हमेशा कमजोर को दबाता है। पुलिस वाले खड़े हुए देखे, कुछ नहीं कह रहे इसको। ठीक है, वो किस तरह प्रेजाइडिंग ऑफिसर, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, अपना काम कर रही है, वो उसको किस तरह, आपको शिकायत है, आप यानी कि अदलिया में जाए, किस तरह थप्पड़ मारी इसको किसने इख्तियार दिया है कि इसको थप्पड़ मारे। तो कानून तो ये हो जाए था, जब कानून में जाते थे इसको भी थप्पड़ मारते हमीदा शाह को, तो ये कानून बराबर होता। ठीक है, तो वही बात है, हमारे इंसाफ नहीं मिलता ना। हमारे यानी कि ताकत वालों को लिए एक अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। तो होना ये चाहिए था हमीदा शाह को, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसने 1-2 थप्पड़ मारे थे, तो 4 थप्पड़ मारने थे, जब जाके इंसाफ मिलता। फिर आगे जाके तो लोग भी संभल के चलते। ठीक है, फिर इसके बाद आप आ जाएं, इसके बाद यानी कि आप आ जाएं शहबाज शरीफ की बेटी राबिया, आई थिंक में ये भी देखें किस तरह बेकरी यानी कि में गई है ये। इनके जो है यानी कि वालिद साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, ठीक है, ना लेपने के ना थोपने के। ठीक है, आप देखें इनकी गुंडागर्दी इनकी बेटी की, ठीक है, और सीधा आपने क्या गुंडागर्दी होती होगी।
बेकरी 12 बजे यानी कि बंद हो गई है, तो वो यानी कि बोल रहे हैं कि 3 बजे खुलेगी, आप आएँ। तो किस तरह राबिया देखें वीडियो में इनको किस तरह बदतमीजी कर रही है, क्यों चीफ मिनिस्टर की बेटी है, तो ये तुरुम खान अपने आप को समझ रही है क्या, ये आते हैं सियासतदान, ठीक है, अपने आप को यानी कि आवाम की नुमाइंदों, ऐसे लानत भेजता हूँ ऐसे नुमाइंदों पर, लानत भेजता हूँ ऐसे यानी कि नुमाइंदों की बेटियों पर मैं, जो आवाम गरीब मिस्किन पर आप जो है जुल्म करें। ये देखें किसी बेकरी वालों को आप यानी कि उसने केक नहीं था, इतना पता कितना गुंडों को लेके आई, और पुलिस वाले भी खड़े हुए, वो किसने उस बेचारे को मारा है, फिर और ऐसे उठा कर ले गए जैसे कि अगवा करके ले गए इसको, ठीक है। इनके ऊपर कोई एक्शन हुआ, माफ़ी मांग ली, वो मांग ली, होना ही चाहिए था कि शहबाज शरीफ की बेटी राबिया को भी इस तरह जूते मारने चाहिए थे, तब जब जाकर इंसाफ मिलता, ठीक। अपना वकला गर्दी हुई थी लाहौर के अंदर, ठीक है, लाहौर के अंदर वकला गर्दी हुई थी। अभी वीडियो देखें, कौन है, एडवोकेट एहसान नियाजी, ठीक है, दहशत गर्दी कर रहे हैं, तो वकील है, मैं भी वकील हूँ, मैं इस बात को कंडक्ट करता हूँ, कोई वकील दादागिरी करता है, बदतमीजी करता है, उसको सजा होनी चाहिए। अब ये एहसान नियाजी एडवोकेट किस तरह पुलिस की गाड़ी तोड़ रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएंगे कि बेदिलों का तोड़फोड़ की गई है। दिल के अमराज का सबसे बड़ा इदारा PIC के अंदर यह हमला किया गया। बेदिलों ने दिल के अस्पतालों में हमला किया और सबके दिल धड़का दिए। वजीर आजम इमरान खान के भांजे हसन नियाजी हमले में पेश रहे हैं। वजीर आजम के भांजे की लाखानूत की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है, जो कि आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे, आपको हम दिखा रहे हैं। वजीर आजम के भांजे हसन नियाजी पुलिस पर पथराव भी करते रहे हैं, जबकि हसन नियाजी पुलिस वैन को आग लगाने में भी आगे नजर आए हैं। जी बिल्कुल, वीडियो मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं जी है इसमें पेश नजर आए, फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, ठीक है। पुलिस की गाड़ी तोड़ रहा है, ठीक है। इधर कराची में अगर कोई MQ वाले कर दे या कोई भी कर दे गाड़ी, तो उसको दहशतगर्द बोलते थे इमरान खान, ठीक है। आज उनका भांजा एहसान नियाजी किस तरह यानी कि पुलिस वाले की गाड़ी, वीडियो देखेंगे किस तरह पुलिस वाली गाड़ी जला रहा है, तोड़ रहा है, कोई एक्शन हुआ, माफी मांगी, कोई जेल में गए, नहीं, इंसाफ नहीं है भाई, कि वज़ीर आज़म का भांजा है, ठीक है, ऐसा नहीं है एक्शन मानी के वो उनमें देगा, तो ज़ाहिर है वो कि भाई ज़ाहिर इंसाफ नहीं है, तो लोग भी डरते हैं, ठीक है। तो भाई कहने मकसद ये है कि सिर्फ आप एक फौजी अफसर, ये चीज़ मैं लाइन से दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये इनको जो है हाईलाइट करा, ये भी कोई इन्होंने भी अच्छे काम नहीं किए, ठीक है। फिर आप आ जाए, फिर आप आ जाए कराची के अंदर। कराची के अंदर एक खातून है डिफेंस के अंदर, ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोका। अब इनकी शक्ल देखें इस खातून की, देखें वीडियो के अंदर, ये देखें, ये सिग्नल वायलेशन करके आई हैं, ये सिग्नल वायलेशन करके आई हैं और गालियां दे रही हैं। गाड़ी नहीं जाएगी यहाँ से, क्यों जाएगी? आपने सिग्नल जंप किया, अपना लाइसेंस दीजिए, लाइसेंस नहीं है घर पे, शनाख्ती कार्ड दें। मैं तेरे को बताती हूँ, रुचि मैं पुलिस को फोन कर दूँ, बताएं जिसको बताना है बताएं। ये सिग्नल करें, गालियां दे रही हैं, कह रही हैं अभी आपके बाप को बताती हूँ। ये इनकी आप हालत देखें कि ये ज़रा पढ़े लिखे शहरी हैं ये लोग। वो बुढ़े अंकल ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, समझ आई, तब ये औकात पे सर 1 मिनट आइएगा ज़रा। हाँ, और फिर गालियां दे रही हैं, ट्रैफिक वायलेशन की, सिग्नल वायलेशन की, आप सिग्नल वायलेशन, आपने सिग्नल वायलेशन की है मैडम, और आपको चालान होगा। चलो चल बुढ़े, अभी औकात पे जाके बात कर, 2 टके का आदमी बकवास कर। हेलो, ये कहीं से लगती शरीफ घराने की औरत, इसके ड्रेसिंग से, इसके इखलाक से, मुंह से, इसको बुढ़ा खुसड्डा, इसका बाप भी होगा बुढ़ा खुसड्डा, ठीक है ना, वो क्या जवानी मर गया होगा, बाप अगर जिंदा भी होगा तो बुढ़ा ही खुसड्डा होगा ना सब बाप भी, ठीक है। इनके अल्फाज देखें, ये हमारी सोसाइटी के हैं, सोशल सोसाइटी, ये पाकिस्तान अवाम है। तो कहना मकसद है सब हम जो है ना इस इनके बद इखलाक में घिरे हुए हैं, पर जिसको जहाँ आए उसको दबा दो, ठीक है, जिसको जहाँ है। हम जब तक इंसाफ नहीं करेंगे, जस्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम जो है ये माशरा हमारा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हम इसी तरह जो है ताकतवर जो है मजलूम को दबाता रहेगा। जिस सही कर्नल की बीवी बने है या नहीं, वो तो कारोबार इसने की, और जिस तरह मैंने वीडियो दिखाई आपकी, देखिए ना किस तरह हमीद शाह ने प्रिजाइडिंग ऑफिस को थप्पड़ मारा, ये आवाम की नुमाइंदी है, देखिए ऐसे आवाम के नुमाइंदों पर मैं लानत भेजता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाए शहबाज शरीफ की बेटी राबिया ने किस तरह बेकरी वाले को पकड़वाया, बेकरी वाले ने नहीं दिया कुछ भी सामान जो टाइम उसको होता है,
तो उसको कैसा मारा है, इसी तरह चाहे तो राबिया को भी मारता है, शहबाज शरीफ की बेटी को भी, तो इंसाफ मिलता है। ठीक है, हमदा शहबाज की बीवी के साथ कितना नाइंसाफ़ी की है, वो तो 100 मोटर एक्शन लिया तो थोड़ा था उसको यानी कि रिलीफ मिला। फिर इसके बाद आ जाए एहसान नियाज़ी, किस तरह पुलिस की गाड़ी जला रहा है, और भी वकला थे, सबको सज़ा मिलनी चाहिए थी ना, तो ताकतवर क्या मगर। ठीक है, फिर ये खातून जैसे मैं आके दिखाया मैं आपको, ठीक है, कराची की यानी कि एक है पनी के बड़े घराने की शक्ल से तो अजीब किस्म की लग रही है, बहरहाल हमारी सोसाइटी की है। ठीक है, तो ये जुल्म है, तो आप हाईलाइट करो तो इनको भी हाईलाइट करो भाई। ठीक है ना, ये कोई दूध की धुलाई नहीं है। ठीक है, हम इसे एक हम जो पाकिस्तानी फौज को कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियाँ, आज उनकी कुर्बानी की वजह से मुल्क बचाओ भाई। आज उनकी कुर्बानी की वजह से मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। आज उनकी पाकिस्तानी फौज की कुर्बानी की वजह, जिनकी माओं ने बेटों ने यानी कि सब्र किया और शहादत इन्होंने हासिल की, अभी तक यानी कि लड़ रहे हैं हमारे। किस तरह दहशतगर्दी होती थी पाकिस्तान ने ख़त्म की, किस तरह कारगिल पर अभी भी यानी कि कारगिल पर जंग की, और कश्मीर में अभी भी जंग हो रही है। ठीक है, किस तरह इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये तो एक कर्नल की बीवी गंदी हो गई, सारे कर्नलों की बीवी गंदी हो जाएगी भाई, नहीं। तो ये है किस तरह कर्नलों की बीवी, मेजरों की बीवी, फौज की बीवियाँ कैसी होती हैं, ये वीडियो में देखें आप। बिलाल जफर ने ऑपरेशन पर जाने से 3 दिन पहले मुझसे मुलाकात की। एक दिन वो मेरे पास बैठा हुआ था और मुस्कुरा के बोला, माँ जी आपको कैसी मौत अच्छी लगती है? मैंने कहा बेटा मौत भी किसी को अच्छी लगती है? कहता नहीं मां जी मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। फिर एकदम खड़ा हो गया और गेट की तरफ मुड़ कर कहा, मां जी फर्ज करें आप इधर ही बैठी हूँ, ये गेट खुले और 2 अफसर आगे आगे आए और आपके पास आके सलूट करें और आपको कहें, मां जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बेटा शहीद हो गया है, तो आपको कैसे लगेगा? और जब वो ये कहेंगे कि हम आपके बेटे की लाश पाकिस्तानी परचम में लपेट कर रहे हैं, मैंने उसे कहा बेटा कैसी बातें करते हैं? ऑपरेशन पर जाने से पहले मुझे बोला कि माँ जी मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा बेटा मैंने तो तुम्हें उस दिन अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था जिस दिन तुमने खाकी वर्दी पहनी थी। फिर कहता है कि माँ जी मेरे लिए इज्जत की दुआ करें। मैंने कहा अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। मेरा बेटा ऑपरेशन पर चला गया। मेरे बेटे का ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था, प्योचार का ऑपरेशन। मेरा बेटा अपने 50 सिपाहियों को लेके चल पड़ा और प्योचार की एक चोटी जिसका नाम खजानो सर है, उसको फतह करने के लिए आगे ही बढ़ता चला गया। 10 घंटे की मुशक्कत के बाद वो वहां पहुंचा और उसने वो चोटी फतह की अपने 50 साथियों के साथ। ये वो जगह थी जहां कई दिनों से पाक फौज रुकी हुई थी और दहशतगर्द उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। मेरे बेटे ने वो चोटी सर की, उस पर पाकिस्तानी परचम लहराया और आज उस चोटी का नाम कैप्टन बिलाल शहीद के नाम पर बिलाल जफर रखा गया। बिलाल चोटी रहती दुनिया तक कायम रहेगी इंशाल्लाह। जब तक पाकिस्तान कायम है बिलाल का नाम जिंदा रहेगा। बिलाल को आखिरी अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी, वो आगे बढ़ता चला गया कि अचानक एक छुपे हुए दहशतगर्द ने गोला उसके सीने पे दागा और बिलाल शहादत ने हंसते हुए अपनी जान मुल्क की खातिर कुर्बान कर दी। बिलाल शहीद मुस्कुराते हुए शहीद हुआ। मैंने जब उसकी शहादत की खबर सुनी तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा पाक परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र, मेरे शहीद बेटे की आखिरी ख्वाहिश थी। बिलाल हमेशा कहता था मां जी गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मुझे लगेगा तो गोला और वो भी सीने पे। उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी। मेरी तरह की हजारों माएँ यहाँ बैठी हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप हौसला रखें, हिम्मत से काम लें। एक बिलाल नहीं, हमारे पास हजारों बिलाल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हर माँ को एक बिलाल दे और जिस वक्त एक बिलाल की जगह 10,000 बिलाल सर पे कफन बांधे सरहद की तरफ दौड़ पड़ेंगे, दहशतगर्द तो क्या दुनिया की कोई ताकत
रोक सकेगी। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। इसको हमने ऐसी गाय है कि ज़्यादा तक कोई आग नहीं आ सकती। ये है हमारी पाकिस्तानी फ़ौज, ये हमारी पाकिस्तानी फ़ौज की फैमिलियाँ। सब्र देखें इनका, ठीक है, इनका इनके इनका सब्र देखें, इनका पैमाना देखें, फिर भी अपने वतन के लिए नहीं कुर्बान होने तैयार हैं। तो ये है हमारी पाकिस्तानी फ़ौज, इनकी फैमिलियाँ। एक के कहने पर थोड़ी पूरी पाकिस्तानी फ़ौज जो को हम जाएंगे वो करने के। तो इस तरह पूरा माशा में दिखाया मैंने आपको, सियासतदान से लेकर पूरी सिविल सोसाइटी तक, ठीक है। तो सब भी यानी कि कोई दबा रहा है, गालियाँ बक रहा है, हर चीज़। तो हमें जब तक हम जस्टिस नहीं करेंगे, इंसाफ लोगों को नहीं देंगे, तो फिर ये जाकर जब मामला थमेगा, ठीक है। तो भारत हमारी पाकिस्तानी फ़ौज कितना कुर्बानी दी है, तो फिर भी वही बात कहता है, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। पाकिस्तानी फ़ौज को सलाम। जब तक कि दोस्तों मुझे इजाज़त दें और इस वीडियो को आगे फैलाएं। किस तरह ये लोग जो है हमारी पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं एक बद इखलाक खातून की खातिर। ये एक खातून बद इखलाक है तो कोई पाकिस्तानी फ़ौज नहीं हो सकती। तो मैं सारी वीडियो बताई है किस ने क्या क्या किया। शहबाज शरीफ ने, हामिदा शाह ने, जितनी भी अवामी लीडर जो आप आपको समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे ये इनको वायरल करें इस वीडियो को, ताकि लोगों को पता चले। तो एक जो है बदतमीज़ खातून की वजह से पूरी पाकिस्तानी फ़ौज की जो है फैमिली ऐसे नहीं होती भाई। इस तरह है तो मैंने भी दिखाई है आपको कि किस तरह सियासतदान की बेटियां और उनकी बीवियां क्या जुल्म कर रही हैं, बच्चे क्या जुल्म कर रहे हैं, एडवोकेट क्या जुल्म कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी क्या जुल्म कर रही है, ठीक है। तो इस तरह ये माशा चल रहा है भाई, ठीक है। ये वही वाली बात, फिर आप जब तक हम जस्टिस नहीं करेंगे तो ये माशा इसी तरह यानी कि कमज़ोर को यानी कि दबाता रहेगा। तो मेरी फिर पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश है इस मामले को देखें। अगर वाकई कर्नल की बीवी है तो उस कर्नल को सज़ा दें और पाकिस्तान टीवी पर आकर इसको ऐलान करें और उसको सज़ा दें, पनिशमेंट, ताकि लोगों को पता चले जस्टिस है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आगे जो है वो उसको दूसरे भी जो है उसको भी फॉलो करेंगे भाई, नहीं सज़ाएँ मिलती हैं। और फिर उन पुलिस वालों को जो है इन्होंने ये वीडियो बनाई है जिनके साथ बदतमीजी की है उनको प्रोमोट किया जाए, उनको तरक्की दी जाए। इन्होंने हिम्मत दिखाई है, ठीक है, कि आगे और आगे मामला पता नहीं कहाँ जाता है, ही दब गया, ही यानी कि हाईलाइट हो गया। तो जितने भी दोस्त हैं वापस मैं उनको बोलता हूँ इस वीडियो को हाईलाइट करें और अपनी वतन से और अपनी फ़ौज से प्यार करें, ठीक है। यही हमारी फ़ौज है जिनसे हम जो है हमारा वतन आज महफूज है। जब तक लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।